So the next topic is shear force and bending moment. We will write shear force as SF, bending moment as PM. रिवीजन करते हैं पहले चीजों का जो जरूरी यहाँ पे यूजफुल होंगे। फर्स्ट इज टाइप ऑफ सपोर्ट्स। कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं? कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं? डिस्कस किया है ना हमने। दो टाइप के सपोर्ट होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड टाइप, सेकंड इज हिंज्ड टाइप सपोर्ट, and the third is roller support. These three are the main support जो हमने सोम के सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। इन तीनों का यूज होता है ज्यादातर। So the first is fixed support. So this is your the support at point A is termed as fixed support. इसमें कितनी रिएक्शन जनरेट होंगी? At point A, how many reactions will be generated? What will happen on the application of this load, that is P? A will resist this force और इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए रिएक्शंस जनरेट होंगी। तीन रिएक्शन जनरेट होती हैं। दिस इज रिएक्शन वर्टिकल एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, आरवी जो वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करेगी, दिस इज आरएच जो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करेगी, और एक क्या जनरेट होगा? मोमेंट, दिस इज मोमेंट एम and tail. So three reactions will be generated at fixed support due to the application of force P. Suppose if in this fixed support and this is your loading, तीन reaction produce होंगे। Again, this is RV, this is RH, and this moment M. जो P हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, क्या उसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा? So due to the application of this force,
there will be no horizontal component. So RH will be what? 0. This RH will become जितनी रिएक्शन जनरेट हो गई यहाँ पे RV एंड MA, ठीक है। तो डिपेंड कर जाएगा लोडिंग कैसी है, जनरेट थी होंगी पर RH की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन जनरेट हुई, दिस इज RV, दिस इज RH एंड moment at A. These are the reactions which will be generated to the application of a given load. The first one is fixed support. The second type of support is hinge support. Second type of support is hinge support. So this is your hinge support. So this is your hinge support. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो आप क्वेश्चन में देखो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा. So this is your hinge support. So on the application of this load, any load P, what will happen? It will generate a vertical reaction. This is RV and this is RH. But क्या इस फोर्स को जब अप्लाई करोगे तो ये फ्रीली रोटेट कर जाएगा. ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स क्या ये फ्रीली रोटेट करेगा? इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट क्या फ्रीली रोटेट कर जाएगा ये? Yes, sir. So on the application of this force P, ये फ्रीली रोटेट कर जाएगा, इसलिए इसके ऊपर कोई एडिशनल मूवमेंट जनरेट नहीं होता है. रिएक्शन क्या होती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ गिवन फोर्स, वो उस फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसे हम रिएक्शन कहते हैं. तो जब आप इस फोर्स को P अप्लाई करोगे तो ये क्या फ्रीली रोटेट कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होता. चलो, हाउ मेनी रिएक्शन विल प्रोड्यूस? दिस इज RH and RV, the number of reactions. These are number of reactions. So this is your second support. Now the third type of support is this is roller support. This roller support. It is represented like this, and followed by rollers at some end, or also the representation of roller support. On the application of any load P, only vertical reaction will be produced in this. So it is free to rotate in x direction as well as it is also free to rotate about point A. So no reaction will be produced in x direction as well as a movement will not produce at point A. इस P के फोर्स को लगाने की वजह से इस पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये x डायरेक्शन में भी कोई फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकता और y डायरेक्शन में भी कोई फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकता, फ्रीली मूव कर जाएगा. अगर आपने इस पे फोर्स P लगाया, due to this application of this additional force P, what will happen? The roller will start moving in x direction. So no reaction will be produced in x direction. So the number of reactions are the number of reactions. Number of reactions 1, that is RV. Similarly, जैसे ही सपोर्ट में था, यहाँ पे भी वही होता है. ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स
इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। पी फोर्स पे पी लगाओगे तो क्या कर जाएगा, इजीली ये रोटेट कर जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए एडिशनल कोई मोमेंट भी नहीं जनरेट होगा। मोमेंट कब जनरेट होता है, कोई भी रिएक्शन कब जनरेट होती है, जब वो सपोर्ट उस पॉइंट पे उस डायरेक्शन में रिएक्शन रेजिस्ट करे उस अप्लाइड फोर्स को। तो जब आप फोर्स भी अप्लाई करोगे तो क्या कर जाएगा, इजीली इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा। सो देयर विल बी नो मोमेंट जनरेटेड एट ए, ठीक है। ज्यादा टाइप ऑफ सपोर्ट्स जो यूज आएंगे। Now shear force. So what is shear force? What is shear force? shear force shear force किसी भी सेक्शन पे, shear force किसी भी सेक्शन पे रिजल्टेंट इंटरनल ट्रांसवर्स फोर्स होता है, ठीक है। So shear force at any section is the resultant, shear force at any section is the resultant internal transverse force, ठीक है। राइट अप लिख लो जिसको लिखना है। तो shear force is what? Shear force at any section, shear force at any section is the resultant internal transverse force, ठीक है। किसी भी सेक्शन पे ये इंटरनल रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट होता है किसका, इंटरनल रिजल्टेंट इंटरनल ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है। किसी भी सेक्शन पे रिजल्टेंट होता है जो भी उसके इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका। देखो कैसे हो सकता है। तो सपोज दिस इज योर बीम, this is the force P will act. So due to the application of this force, reaction will be produced. So two reaction at the support, this is RV and this is RH at A point, this RV at point B, ठीक है। क्या लिखा आपने, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स, shear force is what at any section, रिजल्टेंट होता है किसका, इंटरनल फोर्सेस का जो ट्रांसफर डायरेक्शन में लग रहे होंगे, ठीक है। अब इंटरनल फोर्स चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इंटरनल फोर्स को निकालने के लिए किसी भी सेक्शन पे सेक्शन कट करेंगे और उस सेक्शन पे जितने फोर्सेस इंटरनली एक्ट कर रहे होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, shear फोर्स हो जाएगा, ठीक। अब हमने किसी भी सेक्शन को कट किया, किसी भी सेक्शन को कट किया, या तो आप लेफ्ट साइड से चेक करो या फिर राइट साइड से चेक करो, ठीक है। तो वो बॉडी क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अगर हम लेफ्ट साइड से उस पे जा रहे हैं तो भी जितना इंटरनल फोर्स होगा उतना ही फोर्स क्या, राइट साइड से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। दिस इज योर सेक्शन, हमने सेक्शन X6 कट किया, दो अलग पार्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। So we can say this is point A, this is point A, this is your cross section which is cut at point C, and this is point B. This is point A, this is C, this is C, and this is B. So पहला फोर्स क्या लग रहा है A पॉइंट पे, एक रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। सो दिस इज RVA,
क्या ए से सी के बीच में कोई और फोर्स लग रहा है? क्या ए से सी के बीच में कोई और फोर्स लग रहा है? No, sir. So suppose this is the shear force which will act. This is the internal force which act at point C, and we can say this is Sx. So from the equation of equilibrium, summation of forces in y direction will be what? 0. RB अगर पॉजिटिव अपवर्ड ले रहे हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव हो जाएगा। This is RBA minus Sx is equals to 0. So shear force at this x section Xx will be what? RBA. अगर इस पॉइंट पे ये मतलब हमारा जो फोर्स हो गया shear force इस सेक्शन पे कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? RBA. ठीक, अगर इस सेक्शन सी पे ही बात करूं, इस पॉइंट पे ही बात करूं, यहाँ पे बात करूं, अगर ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो अगर इस पूरे पोर्शन को इक्विलिब्रियम में होना है तो इस वाले सीबी वाले पोर्शन पे जो शेयर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? Upward direction. This is in upward direction. We can say this is in upward direction. Sx. ठीक है, तभी ये बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में आएगी। अब इसके लेफ्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे? एक फोर्स लग रहा था क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में P, लग रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में P, और एक रिएक्शन लग रही है B पे, दिस इज RB। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। Sir, negative. Summation of forces in y direction will be what? 0 from the equation of equilibrium. अपवर्ड में क्या क्या लग रहा था? RB प्लस क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बदतमीजी? RB plus Sx minus P is equals to 0. So Sx will be what? P minus RB. ठीक है? So this is the shear force which will act at this point. ठीक है? अब मैंने ये जनरल केस लिया था, अब ये चेक करो जरा। तो दिस इज योर बी, केस वही है अभी भी, अब आपको उसका मैग्नीट्यूड बता दूंगा। सो दिस इज द this is RA, this is RB, so this is P, point load acting at point P, and the distance is, this is L by 2, this is L by 2. जरा shear force at point C बताना। shear force at point C will be what? So we can say summation of forces in y direction will be what? 0 from the equation of equilibrium. यहाँ से क्या हो गया? क्या आएगा? RA plus RB will be what? This is RA, vertical direction upward. RA plus RB is equals to, you can say as P. अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव दिया तो डाउनवर्ड क्या हो गया? नेगेटिव। RA plus RB equals to P. Since the body is in equilibrium, we can say the moment about point A is equals to what? सपोर्ट कैसा है? हिंज सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट होगा? इस पॉइंट के अबाउट या फिर RB के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A is equals to 0
दिस इज RB इनटू, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट ले रहे हैं तो क्या पॉजिटिव होगा, एक डायरेक्शन लिया पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, दिस इज RB into L is equals to what, T into L by 2. RB is coming out to be T by 2. RB हो गया P by 2, RA कितना हो गया, this P minus P by 2, and this is coming out to be T by 2. ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, P by 2 P by 2. क्लियर? Yes. सो अब मैंने क्या कहा था, सी पॉइंट पे हमें निकालना है शियर फोर्स, ठीक है। सी पॉइंट पे खड़े हुए और किसी एक डायरेक्शन में चेक किया, या तो आप लेफ्ट साइड से रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो या फिर आइदर राइट साइड से निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी है, दिस इज P by 2, RB की वैल्यू कितनी है, दिस इज अगेन P by 2। सी साइड से अगर लेफ्ट साइड चेक किया, सी साइड से लेफ्ट साइड चेक किया, कैसा लग रहा है फोर्स, P by 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेक्शन कट किया तो इस पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे दिस इज P by 2, दिस इज P by 2। समझ में आ गया, ये सेक्शन कट कर दिया है सी पॉइंट का मैंने, बस यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है। Yes, sir. अब ऑन द राइट साइड अगर चेक करो, P by 2 अपवर्ड लग रहा है और P डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया तो दिस P माइनस P by 2। P by 2 वो भी हो जाएगा। ये दिस इज अगेन दिस इज P by 2। क्लियर? So now the sign convention of shear force. साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर किसी भी सेक्शन पे, अगर किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सारे फोर्सेस को क्या पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, and if the forces on the left side, on the right side of the section is in direction downward direction, तो हम इसे क्या पॉजिटिव shear force लेके चलेंगे, this is the positive shear force। ठीक, अगर सेक्शन के जस्ट अगर इसे पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है सेक्शन के, तो सेक्शन के अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे होंगे तो उसे क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हुआ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, Negative. ठीक है, नेगेटिव। और सेक्शन की अगर राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हुआ है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो फिर क्या ले लेंगे, Negative, sir. Negative. सो जितने भी फोर्सेस अगर सेक्शन के, जितने भी फोर्सेस सेक्शन के अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे तो वो सारे पॉजिटिव शेयर फोर्स देंगे, और सेक्शन के अगर राइट साइड लग रहे हैं जितने फोर्स डाउनवर्ड तो वो सारे पॉजिटिव शेयर फोर्स देंगे। शेयर फोर्स का ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। यही साइन कन्वेंशन हम फॉलो भी करेंगे। जैसे हम क्या करते थे, अगर हम नॉर्मली क्या कहते थे कि अगर सेक्शन के अपवर्ड कोई फोर्स लग रहा है तो उसे पॉजिटिव ले लो तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्री डिफाइंड है, ठीक है, मुझे प्री डिफाइंड फॉलो करते हैं साइन कन्वेंशन कि अगर सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर सेक्शन के डाउनवर्ड कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम निगेटिव लेके चलेंगे। इन जनरल हम क्या करते थे, अगर हम कह देते थे कि किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स पॉजिटिव ले रहा है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, तो उसके जो अपोजिट वाला हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। पर यहाँ पे ये वो चीज डिफाइन कर दी गई है कि ठीक है, सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड फोर्स कोई अपवर्ड लग रहा है तो उस फोर्स को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, सेक्शन के कोई फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो उस फोर्स को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर? इस पे देखो, एक न्यूमेरिकल देखो,
आगे क्वेश्चन भी करते हैं। So this is 2 into 2 minus 2 into 1 is equals to 0. So from here RB is coming out to be minus 8 by 5. So minus 8 plus 8 by 5. minus 6 आ सकता 8/5 sir. So 8 by 5 होगा. 8/5 मुझसे बता दो डेसिमल में कितना है? So 1.6. 1.6. 1.6 RB हो गया. So RA will be what? So 2.4. 2.4. अब फॉर सेक्शन अब हम शियर फोर्स निकालेंगे. ठीक है, शियर फोर्स फॉर द सेक्शन A to C. RA कितना है यहाँ पे? दिस इज 2.4 1.6. व्हाट फॉर द पोर्शन AC. ठीक है, लिखते हैं ऐसे फॉर पोर्शन दिस इज पोर्शन A C. ठीक है, शियर फोर्स एट x will be what? शियर फोर्स कैसा लग रहा है? दिस शियर फोर्स विल बी A से C के बीच में कैसा है फोर्स? Positive. Positive, sir. So this is shear force is positive 2.4. ठीक है, यही क्या पूरे A से C के बीच में वैलिड होगा ये फोर्स? Yes. So this is 2.4 for portion C to D. So Sx राइट कर सकते हैं. The shear force will be what? Plus 2.4 and this 2 will contribute as इसका पोर्शन क्या प्लस आएगा नेगेटिव आएगा? So negative. So this is minus 2. The value is plus 0.4. For portion E to G. This G. The shear force will be what? Plus 2.4 minus 2 and this again this 2 will contribute. इसका कैसा component होगा? Minus. This is minus 2. क्या आ रही है वैल्यू? Minus 1.6. Minus 1.6. Shear force for portion CD हो गया हमारा, उसके बाद GG हो गया और GE पोर्शन GE. Sx will be summation of forces either from left or right. ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट और राइट से दोनों जगह से कहीं से भी कर सकते हैं. इस बार क्या इस पोर्शन के लिए GE के लिए हम किधर से राइट से लेके चलते हैं. ठीक है, हमने सेक्शन लिया, ले सकते हैं ना किसी भी साइड से, या लेफ्ट से लें या राइट से लें, शियर फोर्स सेम आएगा. Yes. ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स ये कैसा फोर्स देगा यहाँ पे इस पोर्शन के लिए?
E से G के बीच में ये वाला कौन सा आर ए RB पॉजिटिव RB नेगेटिव सर, नेगेटिव नेगेटिव होगा आरबी। नेगेटिव सर, राइट से नेगेटिव होगा। दिस इज -1.6 और ये कैसा फोर्स देगा? दिस टू विल, ये किस टाइप का फोर्स देगा? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। कितना आ रहा है ये? 0.4 0.4। तो तो shear force for portion, लास्ट पोर्शन का वो क्या है? EB SX। यहाँ पे कितना लग रहा है? इस पोर्शन पे कितना लग रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 1.6। ठीक है, अब जरा यहाँ से भी चेक करो, सारी वैल्यू ऐड करते चले जाओ। दिस पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव -2, यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी निकालो जरा, देखो कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। EB की सेक्शन के लिए फ्रॉम A to B अगर यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं ऐसे, तो कितना शेयर फोर्स आ रहा है चेक करो। ये सर टोटल शेयर फोर्स को करना है क्या? A से B की तरफ अगर प्रोसीड करोगे 2.4 पॉजिटिव दे रहा है, 2 कैसा दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है, फिर 2 नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे कितना शेयर फोर्स आएगा फ्रॉम A to B अगर इस साइड से प्रोसीड कर रहे हैं? सर उस साइड से भी आ गया, निकाला मैं, और 0.4 ही आ रहा है। -0.6 आ रहा है। सर FB सर -1.6 आ रहा है FB के लिए। तो दोनों डायरेक्शन से सेम आएगा, ठीक है, चाहे आप इधर से प्रोसीड करो चाहे आप इस साइड से आओ, ठीक है। किसी भी रेंज पोर्शन के लिए शियर फोर्स होगा वो आपका सेम होगा। क्लियर है सबको? इससे हम डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा शियर फोर्स का वेरिएशन है उसे हम डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। एट पॉइंट ए कितना शेयर फोर्स होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सब पॉजिटिव आर पॉजिटिव। पॉजिटिव आर कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? 2.4 सर। 2.4। ए से सी के बीच में क्या ये शेयर फोर्स चेंज होगा? नो सर। नो It will सर। remain as 2.4। ठीक है, आप सी पॉइंट पे आ गए। सी से डी के बीच में कितना शेयर फोर्स था? 0.4। 0.4। तो सी से जस्ट राइट में कितना शेयर फोर्स होगा? सो उतना 0.4 ही होगा। 0.4 होगा। सी पॉइंट में कह सकता हूँ क्या शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज करेगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0.4 कह सकता हूँ ये। यस सर। और Yes. सी से डी के बीच में क्या ये शेयर फोर्स चेंज होगा? नहीं। नो सर। वैल्यू विल रिमेन एज 0.4। आगे किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। डी से जी के बीच में शेयर फोर्स कितना था? -1.6। -1.6। तो डी के जस्ट राइट पे कितना शेयर फोर्स होगा? -1.6। -1.6।
This is minus 1.6. This is minus 1.6. ठीक है, डी से सी के जी के बीच में क्या कोई वेरिएशन होगा? नहीं No, sir. no At point G, the value of shear force will be what? कितनी होगी shear force की value? 0.4 This is 0.4. G से E के बीच में क्या वेरिएशन आएगा कोई? No, sir. no This will be again, this is 0.4. E point पे कितना हो जाएगा? ये पॉइंट पे -1.6 माइनस 1.6. और E से B के बीच में कितना shear force रहेगा? वो -1.6 सेम 1.6. आपका और B पॉइंट पे रिएक्शन कितना है देखो, 1.6. मतलब आपका ये डायग्राम सही है. ठीक है, अगर आपका डायग्राम ये जितना रिएक्शन आप लेफ्ट से राइट में आ रहे हो कैलकुलेट करते हुए आए और B पॉइंट पे उतना ही रिएक्शन आ गया, तो मतलब आपका जो आपने कैलकुलेशन की है वो सारी सही है. तो दिस इज 2.4. दिस इज 2.4. ये क्या है? पॉजिटिव शियर फोर्स है. दिस इज योर पॉजिटिव शियर फोर्स. दिस इज योर पॉजिटिव पोर्शन. For this portion, the shear force will remain as negative. Again, it will become positive. Negative. इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? shear force डायग्राम कहते हैं. इस डायग्राम को हम कहते हैं shear force डायग्राम. Clear सबको? This is Yes, 0.4. sir. This is 0.4. Point 6. 0.4. Calculate the shear force at point A. Calculate the shear force at point A.
This is draw the shear force diagram for the whole beam. So we can say as summation of force in y direction will be what? This is 0. RA plus RB will coming out to be. This is what? RA plus RB is equals to what? 5 10 minus 10 plus 20 minus 10 plus 5. So RA plus RB is coming out to be minus 20. 20 plus 5, 30 Sir, minus 10 20. 10 बचेगा This is 10. 10 बचेगा ठीक है? So this is 10. Moment about. So the summation of moment about A क्या किया? 0 ले लिया. ठीक है? Moment 0 लिया. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी? This is negative. ठीक है? तो RB कैसा मोमेंट देगा ए पॉइंट पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सर पॉजिटिव. देखो RB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. RB into 6 होगा RB into 1 2 3 4 5 6. दिस इज 6 RB into 6. ठीक है? RB into 6. 5 कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है. क्लॉकवाइज कैसा होगा? नेगेटिव हो गया. -5 into this is -5 into 1 2 3 4 5. This is 5. 5 into 5 plus 10 into 4 minus 20 into 3 plus 10 into 2 minus 5 into 1. यहाँ से RB कितना आया? From here RB is coming out to be what? 5 आ रहा है 5 This is RB is coming out to be 5. RB 5 हो गया. RA कितना हुआ? RA 5 RA plus RB is 10. So RB is RA equals to what? 10 minus 5. This is again 5. ठीक है? RA और RB हमारा 5 आ गया. ये इक्वेशन नोट हो गई होगी. यही नीचे मैं वो बना दे रहा हूँ. shear force diagram. RA की वैल्यू कितनी है? 5 है. RB की वैल्यू भी कितनी है? 5 है. ठीक है? RA किस टाइप का shear force देगा? सर पॉजिटिव सेक्शन के सेक्शन कट गया. सेक्शन पे चेक करो. उसके बाद ये अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है? RA पॉजिटिव देगा अपवर्ड है पॉजिटिव. तो दिस इज 5 प्लस 5. ठीक है? क्या B से लेकर के नेक्स्ट पॉइंट तक C D F G C से D के बीच में क्या कोई चेंज आएगा? नो अगेन दिस इज 5. अगला सेक्शन लिया. C पॉइंट पे कितना लग रहा था? 5 न्यूटन का. कितना हो गया? यहाँ पे C पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स हो जाएगा? 0 -5 प्लस 5 माइनस 5. दिस विल बी 0. ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शेयर फोर्स 0. C से D के बीच में क्या कोई और फोर्स लग रहा है? नो तो कोई वेरिएशन होगा? नहीं.
डी पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स लग रहा है प्लस, ये 10 का लग रहा है, ये प्लस का फोर्स शेयर फोर्स देगा, नेगेटिव का शेयर फोर्स देगा फॉर द पोर्शन ऑफ बी टू ई, पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। इस पॉइंट पे कितना हो गया पॉजिटिव 10। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हुआ, क्या डी से ई के बीच में कोई चेंज होगा, वेरिएशन होगा, नो। कितना रहेगा यहाँ प्लस 10, ठीक है। एट पॉइंट ई कितना चेंज आएगा इस पे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, -10। -10. दिस इज -10, यहाँ पे हो गया कितना, दिस इज -10, ठीक है। ई से लेकर के के तक के बीच में कोई चेंज होगा क्या शेयर फोर्स के बीच में, नो। अगेन एट के पॉइंट कितना शेयर फोर्स जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस है. so -10 plus 10 is -10 plus 10 Zero, is sir. 0। 0. क्या के से जी के बीच में कोई चेंज आएगा शेयर फोर्स का, नो। के जी पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स लगेगा, -5। -5. -5। क्या जी से आर के बीच में कितना कोई शेयर फोर्स का चेंज हो रहा है, जी से लेकर No, बी sir. तक कोई चेंज होगा, सो दिस इज -5, दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम, इसमें मार्क कर दो, दिस इज पॉजिटिव, this is positive, this is negative, and this is negative. So this is your shear force diagram. ठीक है, इसमें वैल्यू भी मार्क कर दो, जैसे सो ये हो गई 5 here, ये 10, ये 10, 10, सर आरबी तो लेकिन पॉजिटिव आया था ना. इस सेक्शन पे लो, सेक्शन लिया हमने, सेक्शन की अगर राइट साइड कोई फोर्स लग रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव शेयर फोर्स देता है, नेगेटिव शेयर फोर्स देता है, नेगेटिव. कैसा शेयर फोर्स देता है, नेगेटिव. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे।